Good afternoon, everyone. How are you all? Good? Very nice. I'm also good. Welcome in your computer class. So, my dear student, as in last class we have started our chapter 2, which was memory and storage. Right? And in that chapter, what we have seen the comparison of memory of computer and human brain memory. May you remember that in that we have seen that computers store all the information in its memory in the form of binary digits, means 0 and 1, and in that we have seen the unit of measurement of memory capacity of a computer. So in that we have seen a complete chart of memory measurement, right? Not measurement, sorry, it's measurement. Then in that we have seen bit, byte, kilobyte to gigabyte. So that chart we have discussed. Then after observing this memory chart, we have also discussed that computer contains two kind of memory. A computer has two types of memory, that is primary memory or secondary memory. We also called it internal memory and external memory. Right? So let's begin our class from this chart only, as today we are going to discuss all these memory devices or storage devices individually. Okay? So as in the chart you can see, computer has two types of memory. कंप्यूटर की दो तरह की memories हैं. First one is primary memory, second one is secondary memory. Primary memory is also known as internal memory, as it is inbuilt in motherboard. The primary memory chip, RAM and ROM, both are inbuilt in motherboard. Rather, the secondary memory, or we also called it external memory, it also comes, the secondary memory also may attached or inside your CPU, but it is not directly installed on motherboard, but it is connected through motherboard. जो सेकेंडरी मेमोरी होती है लाइक हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क हमारे CPU में तो होती है, बट वो कम्युनिकेशन बस के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, ना कि डायरेक्टली इंस्टॉल्ड होती है. तो क्योंकि ये डायरेक्टली इंस्टॉल्ड नहीं है और एक्सटर्नली कनेक्टेड है, हम हार्ड डिस्क को अब जो स्कैन डिस्क आती हैं या जो SD आती हैं, हम उनको एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो हार्ड डिस्क क्योंकि वो डायरेक्टली इंस्टॉल्ड नहीं है मदरबोर्ड पर और कम्युनिकेशन बस के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. राइट? द रीजन बिहाइंड प्राइमरी इज ऑल्सो दैट because the user firstly comes in the connection of this RAM. Whenever any user start working, it work on this RAM, not on this secondary memory. So because we come in the touch of firstly in this memory, that's why we can call it a primary memory. क्योंकि सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? RAM की. जो यूज़र कनेक्ट होता है डायरेक्टली, वो RAM से कनेक्ट होता है. हम डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में वर्क नहीं करते हैं. Whatever we work on this RAM. Later on, if it is required, we store a note via giving the command save. तो हम secondary memory पर secondly जाते हैं. The first task is to connect with RAM. तो इसलिए हम इसको सबसे पहले इसको हम क्या कह सकते हैं? Primary memory. And because it comes at the secondary turns or the second time, that's why it is called secondary memory. Okay? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. अब जो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग मीन्स प्राइमरी मेमोरी. अब कंप्यूटर की मेमोरी आपको क्लियर हो गई. प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी इज इंटरनल, सेकेंडरी इज एक्सटर्नल. इंटरनल बिकॉज इट इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल्ड बट इट इज कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन बस or communication channel. So that's why it is secondary memory. Now in primary memory again we can divide it into two parts. जो प्राइमरी मेमोरी है ये भी हम फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में.
रैम और रोम में। जैसे हमने कहा था कि हमारी अगर ब्रेन मेमोरी, सपोज कि हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, अब क्वेश्चन आंसर्स हमने मेमोराइज किए, तो वो हमारे कहाँ मेमोराइज हो गए, हमारे ब्रेन में, है ना। बट अब अगर उसको आपको लाइफ टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, यू विल नोट इट डाउन ऑन समवेयर। हम उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो अब नोटबुक में एक बार नोट डाउन हुआ देन इट इज परमानेंट। हम थोड़े ही उसको टिल द टाइम आप किसी इरेजर से या पेज को टीयर करके या किसी और एफर्ट से आप उसको डैमेज ना कर दो, अदरवाइज इट इज परमानेंट, है ना। तो आपकी वो सेकेंडरी मेमोरी हो गई। बट प्राइमरी मेमोरी जहाँ आपने मेमोराइज किया वो क्या था, ब्रेन। तो जैसे ब्रेन के दो पार्ट है, एक लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है ना। तो इसी तरह प्राइमरी में भी देयर आर टू मेमोरीज, वन इज रैम, वन इज रोम। तो हम सबसे पहले रैम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वी विल हैव आवर डिस्कशन फर्स्टली ऑन रैम, ठीक है। रैम, RAM, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, this is the full form of RAM. This is important, could come in exam. Now, this RAM, the physical memory that is installed in a computer system, is referred to as random access memory. As I told you, it is installed, है ना। ये जो है डायरेक्टली इंस्टॉल्ड होती है मदरबोर्ड पर, जो रैम होती है। और इसको, ये किसको रेफर करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए भी कहते हैं बिकॉज इट डायरेक्टली कम्स इन द टच ऑफ user and it is a volatile memory like कपूर is a volatile material, आपने ऑन किया, जला and गायब। just similarly RAM is also a volatile memory. the data will be stored till the time your system is on or your application is in working condition. आपने एक बार application close की without saving, then the data will be lost. if you have not saved and you have turned off the computer, then also your data will be vanished. तो आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाता है। रादर आप अपनी एप्लीकेशन क्लोज करो, लाइक सपोज मैंने अभी एक ये स्लाइड बनाई, इसमें अपना डेटा स्टोर किया, एंड नाउ इफ आई विल गो एंड क्लोज माय विंडो विदाउट सेविंग इट, विदाउट गिविंग द कमांड टू सेव चेंजेस। अब मैंने सेव चेंजेस पर आया और उसको नो कर दिया, तो ये जो डेटा स्टोर हुआ ये क्या होगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, तो आई कैन नॉट गेट इट अगेन, है ना। तो ये जो इंटरनल मेमोरी है या जो रैम है, तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एंड शॉर्ट मीन्स नॉट अ शॉर्ट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, 1 मिनट 2 मिनट वाला शॉर्ट टाइम नहीं है। शॉर्ट टाइम मीन्स टिल द टाइम यू आर वर्किंग, आप उस मेमोरी पर, उस फंक्शन पर जितनी देर काम कर रहे हैं, दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द मेमोरी। आप एक बार क्लोज कर दो अपनी विंडो को या फिर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दो, द मेमोरी विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो स्टोर करता है, और कब तक करता है, टिल द टाइम यू आर नॉट टर्निंग ऑफ योर कंप्यूटर। एंड वी कैन डायरेक्टली राइट एंड मॉडिफाई द डेटा ऑन इट। जब हम सेकेंडरी मेमोरी, जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि वो बाद में आती है, तो अगर आपने सपोज की ड्राइंग कर रहे हैं आप, है ना, अपने क्लास 1, 2, 3 में ड्राइंग की है ना, आपने डॉक्यूमेंट्स भी टाइप किए। अब अगर आपको राइटर पर डॉक्यूमेंट टाइप करना है, लाइबर ऑफिस राइटर पर, तो आपने जब लाइबर ऑफिस राइटर खोला, आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो जहां आप टाइप कर रहे हैं दैट प्लेस इज, जहां आपका डेटा जा रहा है वो रैम पे जा रहा है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड उस राइटर की एक कॉपी रैम पर आती है जहां हम टास्क करते हैं। व्हेन यू विल गिव द कमांड सेव, देन दिस विल बी स्टोर्ड परमानेंटली। गॉट इट? तो रैम पर जब हम काम करते हैं तो डायरेक्टली हम उस राइटर पर काम नहीं करते हैं, बल्कि उस एक मिरर इमेज पर, जो एक मिरर इमेज होती है वो रैम पर होती है, उस मिरर इमेज पर हम काम करते हैं। बट अब मिरर इमेज का मतलब ये नहीं समझ लेना कि अपोजिट होता है। मिरर इमेज इन द सेंस की एक कॉपी होती है जिस पर हम काम करते हैं, जब सेव करते हैं तभी वो परमानेंट होती है, और अदरवाइज इरेज हो जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ द सेकेंड इज रोम। रोम इज full form is read only memory. Storage devices, this is again, it is directly installed on the motherboard. This is primary storage and this memory is ROM, read only memory. इसका full form है read only memory. Okay, it is also a built-in
कंप्यूटर मेमोरी। बिल्ट इन मतलब ये ऑलरेडी मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड होती है, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है मदरबोर्ड पर ये डायरेक्टली इंस्टॉल्ड है। ओके, तो दैट इज रोम। बट बीइंग अ प्राइमरी मेमोरी, अब मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने क्या देखा कि प्राइमरी मेमोरी को हमने जब स्टार्ट में बोला तो हमने कहा टेम्पररी, बट बीइंग अ प्राइमरी मेमोरी रोम इज नॉट अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रोम प्राइमरी मेमोरी है बट वॉलेटाइल नहीं है। डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? रैम, रोम बोथ आर प्राइमरी मेमोरी, बट डिफरेंस क्या है? रैम इज अ वॉलेटाइल and ROM is a non-volatile memory. Non-volatile means the data that is stored on ROM is permanent. It cannot be changed, it cannot be erased. That is ROM. Okay? चाहे आपका पावर हो, आप विंडो क्लोज कर दो, anything or any accident, but ROM, the data that is stored, that will be permanently stored over here in ROM. अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रोम आर ऑल्सो पॉसिबल। जैसे अभी आपसे कहा कि रोम में हम चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, तो लेटर ऑन रोम के और एनहांस्ड चिप्स बनाए गए और उन जो टाइप्स हैं रोम के उनमें एक है पी रोम। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें एक बार स्टोर करने के बाद दोबारा और नए प्रोग्राम ऐड किए जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है ईपी रोम, यह है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि ये रीड ओनली है बट वाया यूजिंग सम पर्टिकुलर टेक्निक द प्रोग्राम कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। तो इसमें प्रोग्राम इरेज करके रीप्रोग्राम हो सकता है, तो दैट्स वाई इट इज ई प्रोग्रामेबल। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, इरेज भी हो सकती है और प्रोग्राम भी हो सकती है। देन द नेक्स्ट वन इज ईईपी रोम, electronic erasable programmable read only memory, means by using the electronical rays or electrical rays the program can be erased. Okay, so these are the types of ROM. Now move to the secondary memory. तो अभी प्राइमरी सबको क्लियर हो गया। प्राइमरी में हमने मेजर पार्ट जो आपको मेमोराइज रखने हैं, जो याद रखने हैं, क्या है? दैट प्राइमरी मेमोरी टू टाइप, रैम, रोम। फुल फॉर्म random access memory, read only memory. RAM is volatile, ROM is permanent. If computer will turned off, data from RAM will be erased. If even the system is turned off, data will remain forever. Clear? These are the three basic things that you need to remind. Now the move to the next one is secondary storage. Okay, so this secondary storage is, सेकेंडरी स्टोरेज में अब हम कौन कौन से पार्ट देख रहे हैं? ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में हम देख रहे हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी एंड यूएसबी। यूएसबी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश डिवाइस। ठीक है, तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। नाउ वी विल सी इंडिविजुअली एवरी डिवाइस दैट इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, so let's begin the discussion. In secondary storage, the first that we are going to discuss is hard disk. Okay, the first that we are going to discuss is hard disk. Okay, one more thing that I want to denote, that secondary memory is also called external memory. As I told you, it used to store information for longer period. इसमें जो डेटा होता है, एज इट इज स्टोर्ड बाय यूजर बाय गिविंग अ कमांड, सो दैट्स वाई द डेटा इज स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड एंड डेटा विल नॉट बी लॉस्ट टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू इरेज इट और यू आर नॉट गोइंग टू हैम्पर इट। आप जब तक इसमें कोई हैम्परिंग नहीं करेंगे या डेटा एक्सटर्नल एफर्ट से इरेज नहीं करेंगे, द डेटा विल बी स्टोर्ड परमानेंटली। ओके, और इस एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज RAM is a temporary and its capacity is very less, so that's why we use this secondary memory or external memory. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे हार्ड डिस्क से। ठीक है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट इज हार्ड डिस्क. नाउ हियर इन द पिक्चर you can see this is your hard disk drive and this is hard disk.
तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वी कॉल्ड इट HDD. इसको HDD इसलिए कहा जाता है कि इसमें डिस्क और ड्राइव दोनों कंबाइंड होती हैं. जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है उसमें डिस्क और ड्राइव कंबाइंड होती हैं. ठीक है. तो जो हार्ड डिस्क होती है वो मल्टीपल लेयर ऑफ डिस्क है. जैसे CD है समझ लो, अगर हम एक CD ले लें तो जैसे मल्टीपल CDs को अगर हम बंच बना लें तो इस तरह की मल्टीपल CDs का वो मल्टीपल डिस्क का वो बंच होता है. नॉट CD, हाँ, इट इज़ नॉट CD, बट जो हार्ड डिस्क में जो डिस्क होती है उसमें मल्टीपल डिस्क लेयर्स होती हैं. ठीक है, मल्टीपल डिस्क होती हैं जो कंबाइन होती हैं और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर. ठीक है. तो ये जो like here it is also written, you can read as I am telling you कि it contain multiple disks, so it is written here also. See, it is fixed inside the CPU box. fix होती है as I told you कि ये CPU में तो fix होती है. we need not to put it externally, किसी केबल से अलग से कनेक्ट नहीं करना है, but it is not directly connected on motherboard. motherboard पर ये कनेक्ट होती है कम्युनिकेशन बसेस के थ्रू, डायरेक्ट इंस्टॉल्ड नहीं होती है मदरबोर्ड पर. तो दिस इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स. इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है. बिकॉज क्यों कर सकती है? बिकॉज इट हैज़ और इट मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क. इसमें मल्टीपल डिस्क होती हैं एंड विच आर फर्दर मेड ऑफ हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल. और ये जो हार्ड फ्लैटेड मेटल होता है ये उससे बनी हुई होती हैं. सो डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क. जैसे CD होती है तो CD में आपको पता है कि डेटा वन साइड में स्टोर होता है, जो शाइनिंग साइड होती है वहाँ डेटा स्टोर होता है, नॉट ऑन द अपोजिट साइड. तो इन दिस डिस्क डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन बोथ द साइड. नाउअडेज दैट आई एम सेइंग कि हार्ड डिस्क जो होती है वो इनबिल्ट होती है. नाउअडेज जो हार्ड डिस्क हैं वो एक्सटर्नल भी आ रही हैं, just like this. I am just showing you, just look at here, this one. This is also hard disk, but this is external, means via this cable you can connect it. क्योंकि nowadays the data requirement is a lot, so pen drive और less GB data, the capacity is very less, तो वो एक big problem हो जाती है. तो that's why USB की जगह पर लोगों ने डायरेक्ट क्या यूज़ कर लिया? हार्ड डिस्क. अब क्योंकि वो एक्सटर्नल आती है एंड इट इज़ नाउ नॉट सो मच हैवी और पॉकेट साइज में अवेलेबल है, तो पॉकेट साइज की होती है. सो एंड लॉट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड. तो दैट्स वाई नाउ इट इज़ कमिंग इन अ पॉपुलैरिटी. पॉपुलर हो रही है और लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं. दैट इज़ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. दिस इज ऑल्सो हार्ड डिस्क बट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. ओके. तो नाउअडेज द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर स्मॉल इन साइज एंड कैरीड एनीवेयर एंड कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा. और अब आप इसकी डेटा कैपेसिटी को आप देखो, 2 TB to 5 TB मीन्स टेराबाइट. 2 टेराबाइट टू 5 टेराबाइट. और टेराबाइट का मतलब है ये एक बहुत बड़ी यूनिट है. जो टेराबाइट है इट इज़ अ बिग यूनिट टू स्टोर डेटा. एज आई शो यू द टेबल ऑन यस्टरडेज क्लास, हियर यू सी 1 KB मीन्स 1024 बाइट्स. तो अब 1 TB का मतलब है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 multiply by 1024 then multiply by 1024, then it will make 1 TB. So the capacity is not only 1 but it is 2 or 2 to 5 even terabyte. Okay, so it can store a large amount of data. Got it? So that is your hard disk. Now after watching hard disk and having the discussion about these storage devices, the rest of the hard storage devices like this CD, DVD and BD we will discuss tomorrow. All the single and individual disk, and apart from it even more devices are there that can consider as secondary storage. So we will see those devices in next class. So till the time your homework is to read about primary memory and secondary memory, learn the difference between RAM and ROM, write also in the form of table difference between RAM and ROM, and then about a short note on hard disk drive. Okay, so that's it from my side for the day. I hope you understand the concept. So till the time, stay blessed, stay happy, God bless, bye bye.